مقدس علماء کرام، مفتیان اعظام، شورائے انوار کانفرنس میں تشریف فرما، جملہ عشاقان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العلی العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سارے جہان کے مرکز عقیدت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، حضور احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی منبع العلم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ دائما ابدا ابدا۔ استاذ العلماء حضرت علامہ سجاد صاحب قبلہ اور بیٹھیے، میں بھی آ رہا ہوں ادھر۔ حضرت علامہ رحمۃ اللہ صاحب دکان نہیں ہے، چائے کی دکان، ان کے علاوہ چائے کی دکان جو ہے دارالعلوم سرکار عاصی کے جملہ مقدس اساتذہ کرام، قرب و جوار سے آئے ہوئے ہماری جماعت کے عظیم ممتاز معطر علماء کرام، حضرت علامہ مفتی سلیم صاحب قبلہ، حضرت نقیب اہل سنت مولانا فہیم رضا شمشی، ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر شاعر اسلام ارشد اقبال اشرفی کی خوبصورت آواز سے اپنے آپ کو آپ نے مستفیض کیا۔ الحمدللہ آج کے اس جلسے میں فیضان ابو بکر بھی برس رہا ہے اور فیضان عمر بھی برس رہا ہے، چونکہ ہم جس ذات سے نسبت رکھتے ہیں، حضرت سرکار عاصی کا ایک رخ حضرت ابو بکر صدیق سے ملتا ہے تو دوسرا رخ حضرت فاروق اعظم سے ملتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ دونوں تیور یہاں پر موجود ہیں۔ آپ صرف مین مشین سے ادھر میری طرف دیکھیے، مین مشین سے 2-4 پوائنٹ والیوم بڑھا دیجیے تاکہ میری آواز برابر ہو۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو سرکار عاصی نے کہا عاصی شہید عشق ہے مردہ نہ جانے، مر کے ملی ہے جن زندگی جاویدہ مجھے۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ دولت ثروت کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ خودی نہ بیچ
खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, उस शेर की तशरीह का नाम सरकार यासीन। जिंदाबाद। तैयारी इश्क में कहा डॉक्टर इकबाल ने जमाने को दरसे वफा दिया कि नहीं तेरा नशीबन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। समाज में इज्जत सबको चाहिए, वकार सबको चाहिए, मर्द हो औरत हो बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो माँ बहने हो आलिम हो मौलाना हो इमाम हो मुक्तदी हो पीर हो मुरीद हो, इज्जत सबको चाहिए। जहाँ इज्जत नहीं मिलती इंसान वहाँ नजर नहीं आता। मगर सवाल ये उठता है कि इज्जत मिलेगी कैसे, वकार मिलेगा कैसे, लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे कैसे, जमाना आपको इज्जत की निगाह से देखे कैसे। तो कुरान कहता है इज्जत की सिर्फ एक राह है, ऊतुल इल्म दर्जात, इल्म हासिल करो खुदा तेरी इज्जत को बढ़ा देगा, खुदा तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। यानी आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तालीम याफ्ता बन जाएंगे। आप चाहते हैं कि लोग आपको इज्जत की निगाह से देखें, एजुकेटेड बन जाएंगे। आप चाहते हैं कि घर में आपकी इज्जत हो तो पढ़ा लिखा इंसान बन जाएंगे। आप चाहते हैं कि जमाना आपका रिस्पेक्ट करे तो आप तालीम वाले बन जाइए। समाज में हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, आलिम अपने इल्म के मुताबिक, मुफ्ती अपने इल्म के मुताबिक, मुफस्सिर अपने इल्म के मुताबिक, मुहद्दिस अपने इल्म के मुताबिक, हाफिज़ कुरान अपने इल्म के मुताबिक। ऐसा नहीं होता जहां एमए पास की जरूरत हो वहां बीए पास को रख लिया जाए, जहां डॉक्टर की जरूरत हो वहां इंजीनियर को रख लिया जाए, जहां बीएड की जरूरत हो वहां डीएलएड को रख लिया जाए। ऐसा नहीं होता जहां इंटर पास की जरूरत हो वहां मैट्रिक पास को रख लिया जाए। ऐसा भी नहीं होता जहां मुफ्ती की जरूरत हो वहां आलिम को रख दिया जाए, जहां आलिम की जरूरत हो वहां हाफिज को रख दिया जाए। पता ये चलता है हर इंसान अपनी सलाहियत के एतबार से और इल्म के एतबार से समाज में इज्जत पाता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि डॉक्टर इंजीनियर के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो, इंजीनियर प्रोफेसर के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो, प्रोफेसर साइंटिस्ट के पीछे हाथ बांध कर खड़े हो, बीए पास महिमे वाले के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो, इंटर पास साहब मैट्रिक वाले के पीछे हाथ बांध कर खड़े हो। नहीं साहब, सबकी इज्जत अपनी जगह है। मगर जब हमारी कौम का कोई शहजादा दारुल उलूम सरकार आसी में कुरान याद करके सीने में महफूज करके हाफिज़े कुरान बनकर या आलिमे कुरान बनकर या कारिये कुरान बनकर जब अपनी बस्ती में पलट कर जाता है और मस्जिद में मुसल्ले इमामत पे खड़ा होता है, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, प्रोफेसर, क्या साइंटिस्ट, क्या प्रधान, क्या अमीर, क्या गरीब, सारा जमाना उसके पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। सारी दुनिया हाथ बांध करके खड़ी हो जाती है। या किसी ने एक डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब क्या बात है, आप इतने बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं मगर एक बच्चा दारुल उलूम सरकार आसी से पढ़कर आया और आप उसके पीछे हाथ बांध कर खड़े हो गए। मैं देखता हूं कि आप अपनी डिस्पेंसरी में है, मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब आए, आप देख करके साहब खड़े हो गए। मैंने देखा अल्लामा सज्जाद साहब आए, आप देख कर खड़े हो गए। डॉक्टर साहब सारी दुनिया के मसाइल आप हल करते हैं मगर आपका जो जब कोई मसला फंस जाए, मुफ्ती सलीम साहब इसके बारे में क्या हुक्म है। आप लोग इतने पढ़े लिखे होकर मौलाना को इतनी इज्जत क्यों देते हैं, हाफिज़े कुरान का इतना रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, कारिये कुरान को इतनी इज्जत से क्यों देखते हैं। डॉक्टर साहब जाकिर नाइक की तरह नहीं थे कि दुनिया में तकरीर करता फिरे और आज तक अपना लिबास नहीं बदल सके। आज वही
लोग हैं जो थोड़ी सी बात पे कह रहे हैं कि सफर में अपना लिबास बदल लीजिए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा कहाँ कहाँ लिबास बदलते फिरिएगा, ये लिबास बदलने की बात करना बेवकूफी है। भारत में 2% 3% सिखों की तादाद है, मगर सिखों का पगड़ा कल भी था आज भी है। सिखों के पास दाढ़ी नहीं दाढ़ा कल भी था आज भी है। सिख आज भी कमर में तलवार लेकर चलता है, इसलिए कि सिख जानता है कि मैं सिख हूँ तो पगड़ी बांधना है, मैं सिख हूँ तो डाढ़ा रखना है, मैं सिख हूँ तो कमर में तलवार लटकानी है। उन्होंने अपने दीनी पहचान को नहीं छोड़ा, मगर मुसलमानों ने अपने आप को दीन से आजाद कर लिया, नबी की सुन्नत से आजाद कर लिया। नतीजा ये निकला कि साहब आज दूसरे ये समझते हैं शायद दाढ़ी रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी नहीं है, शायद टोपी पहनना हर मुसलमान के लिए जरूरी नहीं है, शायद इस्लामी लिबास पहनना हर मुसलमान के लिए जरूरी नहीं है, शायद हिजाब लगाना हर मुस्लिम औरत के लिए जरूरी नहीं है। साहब नतीजा ये निकला कि आज मुसलमान होकर भी नौजवान दाढ़ी रखने में शर्माते हैं, मुसलमान होकर भी इस्लामी लिबास पहनने में शर्माते हैं, मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनने में शर्माती है। नतीजा क्या निकला, मज़ारों पे चादरें चढ़ रही हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। हमारी पोजीशन तो ये है, हम मज़ारों पे 1 करोड़ चादरें चढ़ा रहे हैं और नौजवानों के सरों पे टोपियों का पता नहीं है, औरतों के जिस्म पे हिजाब का पता नहीं है। जो आज तक अपना सर नबी की सुन्नत के मुताबिक ढांप नहीं पाता, तो बुजुर्गों के मज़ार पे जाकर लंबी चौड़ी चादरें चढ़ाता है। अब आप जरा सा सोचे, जब हमने अपनी इस्लाह की कोशिशें नहीं की, फिर हम साहब ये कहां से फार्मूला ले आए। काश हमारी कौम का हर शहजादा ये सोचता, हर शहजादा ये सोचता हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ाजोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। जब 2% सिख अपनी पहचान नहीं छोड़ सकते, तो भारत के गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमान अपनी पहचान कैसे छोड़ नबी की सुन्नत को अपनी जिंदगी से कैसे अलग कर सकते हैं। मगर आज हमारे लिए ये बड़ा आसान हो गया। मैं ये अर्ज कर रहा था, चूंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर ऐसा मुक़द्दिर मौजूद है जिसके पास जींस भी है, टी शर्ट भी है, टाई भी है ना। अब वैसा खतीब सोशल मीडिया पे कुरान की बात कर रहा है, हदीस की बात कर रहा है, बड़े मजे से लोग सुन रहे हैं। नतीजा तो वही निकलेगा, मिर्जा चेहली जैसे लोग ताश को जायज करार देंगे, सेम लिंगिंग में जाकर के निकाह पढ़ाएंगे, लिविंग रिलेशनशिप को माज़अल्लाह साहब रुखसत की सूरत निकाल देंगे साहब। क्योंकि ये लोग आजाद ज़हन लेकर, इन्हें दीनों सुन्नत से मतलब नहीं, अपने चैनल की कमाई से मतलब है। चूंकि ये कमाने के लिए सोशल मीडिया पर आए, मगर सरकारें आसी गाजी पूरी की जिंदगी देखिए, पूरी जिंदगी मजहब इस्लाम की तबलीग में गुजार दी, मगर कभी दौलत को अपना पेशा नहीं बनाया, कभी सरवत को अपना पेशा नहीं बनाया, ज़माने को दर्से वफा दिया। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा है। डॉक्टर साहब ने मीडिया वाले को बैठाया, कहा बैठिए, ये गर्म चाय पीजिए। आप मीडिया वाले हैं, कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा है खंजर की नोक पर। बैठिए, टेंशन मत लीजिए। मैं अपने आलिम साहब की इज्जत कल भी करता था, आज भी करता हूँ। मैं अपने हाफिज साहब की इज्जत कल भी करता था, आज भी करता हूँ। मेरे मुफ्ती साहब आ जाए तो मैं अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ। शायद आपको पता नहीं है, मैं दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया हूँ, मगर आपको पता होना चाहिए मैं डॉक्टर बना, मेरा भाई इंजीनियर बना, एक भाई साइंटिस्ट बना, एक प्रोफेसर बना, मगर हम लोग जो पढ़ लिख कर बने तो मालूम है मैं डॉक्टर बना, मगर दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बना हूँ। मेरा भाई इंजीनियर बना, मगर दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर इंजीनियर बना। मेरा एक भाई प्रोफेसर बना, मगर दुनिया के इंसानों की
लिखी हुई किताबों को पढ़कर प्रोफेसर बना, मेरा एक भाई साइंटिस्ट बना, मगर दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर साइंटिस्ट बना। सुनो, हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बने हैं, मगर हमारी कौम का जो इमाम बना है वो दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर इमाम नहीं बना, बल्कि अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान को पढ़कर इमाम बना है, कुरान को याद करके इमाम बना है। सुनो, उस यही वजह है कि यही वजह है वो मुझसे पर्सनालिटी में बड़ा नहीं है, वो हुस्न जमाल की वजह से बड़ा नहीं है, वो मुझसे खानदान की वजह से बड़ा नहीं है, वो दौलत की वजह से मुझसे बड़ा नहीं है, बल्कि कुरान की तालीम ने आलिम कुरान के रुतबे को बढ़ा दिया है, कुरान की तालीम ने हाफिज कुरान के रुतबे को बढ़ा दिया है। दुनिया में कोई किताब कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती और कोई इल्म वाला आलिम कुरान का मुकाबला नहीं कर सकता। यही वजह है कुरान कहता है अन यस्तविल लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है? ऐसा नहीं हो सकता। उतुल इल्म दर्जात, अल्लाह ने इल्म वालों के रुतबे को बढ़ाया। अच्छा, ऐसा है जिस माइक में, फहीम भाई के माइक में बहुत ज्यादा आवाज है ना, उनको माइक की क्या जरूरत है, कितना बलवाइएगा, उसको बंद कर दीजिए, है ना। और इसको बिल्कुल साफ शफाफ है ना, इसमें आवाज दीजिए ताकि सबको मेरी बात समझ में आए। जिन्हें बात समझ में आ रही है जरा एक बार मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह। एक बार जरा दोनों हाथों को उठाकर पीछे से बोलते सुभान अल्लाह। मुझे एहसास हो कि आप लोग बेदार भी हैं, सुन भी रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम सरकार आसी से फारिग होने वाले तलबाए मिल्लत इस्लामिया भी तशरीफ ले आए, किसी ने मौलवी का कोर्स किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मौलवी बन जाएंगे, कोई हाफिज कुरान बन गया है, कोई कारी खुशीलहान बन गया है। माशाअल्लाह ये मुकद्दस टोली और मुकद्दस जमात दारुल उलूम सरकार आसी की पैदावार यहाँ पर मौजूद है। अब आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो। अब मैं आपसे बताना चाहूंगा, मियाँ दुनिया में साहब हम तालीम हासिल करते हैं, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, या हम तालीम याफ्ता शख्स हैं। आपने देखा होगा साहब दुनिया में जितने लोग पढ़ते हैं, डॉक्टर के लिए किताबें अलग है, इंजीनियर के लिए किताबें अलग है, प्रोफेसर के लिए किताबें अलग है, मैट्रिक में पढ़ने वालों के लिए किताबें अलग है, इंटर में पढ़ने वालों के लिए किताबें अलग है, लॉ की पढ़ाई पढ़ने वालों के लिए किताबें अलग है। ऐसा नहीं होता कि मैट्रिक में पढ़ने वाला इंटर की किताबें पढ़े, इंटर में पढ़ने वाला बीए की किताबें पढ़े, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने वाला इंजीनियर की किताबें पढ़े, कॉमर्स पढ़ने वाला साइंस की किताबें पढ़े, साइंस पढ़ने वाला साहब कॉमर्स की किताबें पढ़े। नहीं, हर इंसान अपने सब्जेक्ट की चॉइस के मुताबिक किताबों को पढ़ता है। जो इंसान जिस तालीम को हासिल करता है वो वही किताबें पढ़ता है। मगर दुनिया में कोई ऐसी किताब ले आइए, मैट्रिक में पढ़ने वाला भी उस किताब को पढ़ता हो, इंटर में पढ़ने वाला भी उस किताब को पढ़ता हो, बीए में पढ़ने वाला भी उस किताब को पढ़ता हो, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर भी उस किताब को पढ़ते हो, औरत भी पढ़ती हो, मर्द भी पढ़ता हो, बीवी भी पढ़ती हो, शौहर भी पढ़ता हो, बाप भी पढ़ता हो, बेटा भी पढ़ता हो, बेटी भी पढ़ती हो, माँ भी पढ़ती हो, साहब सास भी पढ़ती हो, बहू भी पढ़ती हो, आलिम भी पढ़ता हो, हाफिज भी पढ़ता हो, इमाम भी पढ़ता हो, मुक्तदी भी पढ़ता हो, पीर भी पढ़ता हो, मुरीद भी पढ़ता हो। ऐसी किताब लाइए, गरीब भी पढ़ता हो, अमीर भी पढ़ता हो, कॉलेज में पढ़ने वाला भी पढ़ता हो, मदरसे में पढ़ने वाला भी पढ़ता हो, खानकाह की टूटी चटाई पे बैठकर भी वो किताब पढ़ी जाती हो, और दरसगाह में मसनदें लगाकर भी उस किताब को पढ़ा जाता हो। आप कहेंगे मौलाना दुनिया में ऐसी किताब सिर्फ एक है और उस किताब को कुरान कहा जाता है, उस किताब को कुरान कहा जाता है। ये कुरान है। मैट्रिक में पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है, इंटर में पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है, बीए में पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है, साइंटिस्ट भी कुरान पढ़ रहे हैं, आलिम भी कुरान पढ़ रहे हैं, औरत
औरतें भी कुरान पढ़ रही हैं, मर्द भी कुरान पढ़ रहे हैं, मगर याद रखिएगा कुरान पढ़ तो सब रहे हैं मगर पढ़ने का मकसद अलग अलग है। सबका मकसद एक नहीं है, किताब एक है मगर मकसद सबका अलग अलग है। दुनिया में ऐसी कोई किताब लाइए हम अपने मकसद के लिए पढ़े, आप अपने मकसद के लिए पढ़े, ये अपने मकसद के लिए पढ़े। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, अगर तारीख की किताब है तो सब तारीख जानने के मकसद से पढ़ेंगे, ग्रामर की किताब है तो सब ग्रामर जानने के मकसद से पढ़ेंगे, इंग्लिश की किताब है तो सब इंग्लिश जानने के मकसद से पढ़ेंगे। मगर ये कुरान ऐसी किताब है पढ़ने वाले अनेक हैं, मकसद सबका अलग अलग है। मैंने कहा साइंटिस्टों तुम कुरान क्यों पढ़ते हो? साइंटिस्ट कहते हैं मौलाना कुरान नहीं होता तो रिसर्च का दरवाजा कौन खोलता? ये कुरान ही तो है जिसने सबसे पहले दुनिया के सामने इंसान की पैदाइश कैसे हुई इसे उजागर किया, इस तहकीक को पेश किया। कुरान कहता है खुलिक़ मिन माइन दाफिक यखरुजु बैन सुल्बि वत्तराइब, हमने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया है। वो पानी जो मर्द के रीढ़ की हड्डी से और औरत के सीने के दरमियान से निकलता है। खलक़ल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है, हैंडसम बनाया है, औरत है तो ब्यूटीफुल बनाया है। दुनिया में कोई जानवर कितना हो खूबसूरत हो मगर इंसान की खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकता। अब साहब ये कुरान है तो रिसर्च का दरवाजा खोल रहा है। अमेरिका, चाइना, रशिया ने आज चांद पे कदम रखा मगर कुरान ने 1450 बरस पहले कहा वल कमरी इज़्ज़त तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून, कसम है उस चमकते चांद की, एक ऐसा जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे और चांद के ऊपर चले जाएंगे। ये साइंटिस्ट है, ये रिसर्च के मकसद से कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने देखा डॉक्टर साहब सिकंदरपुर बाजार में अपनी डिस्पेंसरी में कदम रखते हैं, मरीजों की कतार लगी है, कंपाउंडर से कहा ठहर जाओ अभी किसी मरीज को आने नहीं देना, जरा 10 मिनट मुझे कुरान पढ़ लेने दो। मैंने कहा डॉक्टर साहब खैरियत, डिस्पेंसरी में कुरान पढ़ रहे हैं? कहा हाँ मौलाना मैं बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर डॉक्टर बना हूँ मगर शिफा खुदा की मर्जी से है और अल्लाह कुरान में फरमाता है हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, मेरी दवा में शिफा की गारंटी नहीं मगर कुरान की तिलावत में शिफा की गारंटी है। यानी अल्लाह कुरान में फरमाता है हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये कुरान ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। साहब डॉक्टर अपने मकसद के लिए कुरान पढ़ रहा है। मैंने देखा एक बूढ़ी माँ घर के अंदर साहब आंखों से दिखता नहीं, चश्मा ऊपर नीचे करके कुरान पढ़ रही है। मैंने कहा अम्मा जी इस बुढ़ापे में आप नमाज़े फजर के बाद कुरान पढ़ रही है? कहा हाँ मौलाना ये मेरा घर है, इसमें मेरे पोता पोती रहते हैं, मेरी बहू रहती है, मेरा बेटा रहता है, मेरी बेटी दामाद रहते हैं। मैंने सुना है जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर से शैतान भाग जाता है, नहुसत खत्म हो जाती है, खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है। इसलिए मैं रोजाना कुरान की तिलावत करती हूँ ताकि मेरे घर में खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है। अब साहब बूढ़ी माँ कुरान पढ़ रही है मगर मकसद अलग है। मैंने देखा शाबान का महीना हाफिज साहब सुबह से रात तक कुरान पढ़ रहे हैं। हजरत खैरियत इस कदर तिलावत, कहा मौलाना रमजान का महीना सर पर है, तरावी की नमाज में कुरान सुनाना है। मैंने देखा मुफ्ती साहब बैठकर दारुल इफ्ता में कुरान पढ़ रहे हैं। मुफ्ती सलीम साहब खैरियत, कहा हाँ हुजूर कुरान लेकर बैठे हैं, साथ में कंजुल ईमान लेकर बैठे हैं। कहते हैं हाँ मौलाना अगर ये कुरान ही तो है जिसे पढ़कर लोगों को मसाइल बताता हूँ, मर्द को कितना हिस्सा मिलेगा और औरत को कितना हिस्सा मिलेगा। अल्लाहु अकबर। मैंने देखा कि साहब दुनिया में जितनी किताबें हैं सब पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं मगर एक शख्स को पढ़ना नहीं आता, अनपढ़ जाहिल गवार है मगर गुस्ल करके पावसू होकर मुसल्ला बिछाकर कुरान लेकर बैठ गया। मैंने कहा खैरियत है, आपको तो कुरान पढ़ना नहीं आता, आप कुरान लेकर क्यों बैठ गए? कहा नहीं मैंने अल्लामा रहमतुल्लाह साहब को फोन किया है कि इदारे से किसी दारुल उलूम सरकारे आसी से किसी हाफिज़े कुरान को भेज दीजिए, मुझे पढ़ना नहीं आता
मगर मुझे सुनना आता है, मुझे देखना आता है, मुझे चूमना आता है। मैंने कहा मियाँ मतलब? कहा मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं ये सब पढ़े लिखे लोगों के लिए है। इंग्लिश पढ़े लिखे लोगों के लिए, हिंदी पढ़े लिखे लोगों के लिए, उर्दू पढ़े लिखे लोगों के लिए, मैथमेटिक्स पढ़े लिखे लोगों के लिए। मगर ये कुरान है, पढ़ने वाला पढ़ता है, हाफिज़े कुरान बनता है, मुफस्सिरे कुरान बनता है, आलिमे कुरान पढ़ता है। और जिसे पढ़ना नहीं आता वो मोहब्बत से सुन लेता है तो जन्नतुल फिरदौस का हकदार बनता है। मौलाना ये कुरान है, पढ़ा लिखा पढ़कर कामयाब होता है, अनपढ़ जाहिल सुनकर कामयाब होता है, देखकर कामयाब होता है। किताब एक है, पढ़ा लिखा पढ़कर कामयाब, अनपढ़ जाहिल सुनकर कामयाब। ऐसी किताब को कुरान। अच्छा साहब दुनिया में जितनी किताबें हैं सब हिंदुस्तान में काम आने वाली है, मगर मैंने देखा एक बच्चा कब्रिस्तान में बाप की कब्र पे खड़ा है और कुरान पढ़ रहा है। मैंने कहा शहजादे खैरियत कब्रिस्तान में कुरान पढ़ रहे हो? कहा हाँ मौलाना, दुनिया में जितनी किताबें हैं सब जिंदा लोगों के लिए है, यानी जब तक जिंदा है पढ़ते रहिए, मगर मुर्दे को टाइम्स ऑफ इंडिया से कोई फायदा नहीं, मुर्दे को दैनिक जागरण से कोई फायदा नहीं, मुर्दे को ग्रामर की किताबों से कोई फायदा नहीं, मुर्दों को साहब इंग्लिश की बहुत बड़ी बड़ी किताबों से कोई फायदा नहीं। मैंने कहा फायदा? कहा मौलाना ये कुरान है, ये कुरान है, अगर जिंदा पढ़े तो हिंदुस्तान में कामयाब होता है, और मुर्दों के नाम से पढ़ दो तो वो कब्रिस्तान में कामयाब हो जाते हैं। किताब एक है, उसे पढ़कर हिंदुस्तान वाले भी कामयाब हो रहे हैं, कब्रिस्तान वाले भी कामयाब हो रहे हैं। दुनिया में ऐसी बेमिसलो बेमिसाल किताब का नाम, पूरा मजमा हाथ उठाकर आगे से पीछे तक बोलिए क्या नाम है? आवाज ऊंची करके बोलिए क्या नाम है? कुरान। और हर घर में कुरान है कि नहीं है? हर घर में कुरान है। कुरान पे जुज़दान भी है, मगर अफसोस है कुरान तो है मगर हम पढ़ते कहाँ हैं। अच्छा साहब दुनिया में जितनी किताबें हैं जो पढ़ेगा फायदा उसी को होगा। ऐसा नहीं है पढ़ूं मैं डॉक्टर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं इंजीनियर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं प्रोफेसर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं फायदा आपको हो जाए, तिलावत मैं करूं और आपको फायदा हो जाए। नहीं लिया, दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं बेटा पढ़े और बाप को फायदा हो, माँ पढ़े और बेटे को फायदा हो, बीवी पढ़े और शौहर को फायदा हो, शागिर्द पढ़े और उस्ताद को फायदा हो। दुनिया में जितनी किताबें हैं जो पढ़ता है वो फायदा पाता है, मगर दारुल उलूम सरकार आसी का फारिग होने वाला एक बच्चा सिद्क दिल से पूरा कुरान नहीं सिर्फ सूरा फातिहा पढ़ता है, और एक खानदान नहीं पूरी दुनिया के साहब ईमान के नाम से बख्शिश की दुआ मांगता है। मेरा ईमान और अकीदा कहता है कि साहब एक हाफिज़े कुरान की तिलावत से सिर्फ सिकंदरपुर नहीं पूरे हिंदुस्तान के साहब ईमान बख्शे जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है इस कदर अजीम किताब कुरान, मगर हमने कुरान से कितना फायदा हासिल किया। कुरान की पहली आयत और पहला पैगाम इक़रा, तू पढ़, यानी अनपढ़ न रहना, जाहिल न रहना। यही वजह है इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, रोज़ा बाद में फर्ज है, हज और ज़कात बाद में फर्ज है। बच्चा बालिग होगा तब नमाज फर्ज है, बच्ची बालिगा होगी तब नमाज फर्ज है, बच्चे जवान होंगे तब रोज़ा फर्ज है। मगर बात जब तालीम की आई तो आमिना के लाल फरमाते हैं उतलुल इल्म मिनल महदि इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर
कर कब्र की मंजिल तक। अब सुल्तान रजा कहना चाहेगा तालीम हासिल करना जरूरी है, बगैर तालीम के जिंदगी में अंधेरा है। मगर हम पढ़े तो क्या पढ़े, हम पढ़े तो कैसे पढ़े। अब जरा तालीमी पोजीशन पे ध्यान डालते हैं। दुनिया में कुछ तालीम वो है जहां से डिग्रियां हमें मिलती है, वो डिग्रियां भी जरूरी है। अगर डिग्रियां नहीं होंगी तो आप किसी सरकारी महकमे में बहाल कैसे होंगे। मैट्रिक पास है तो उत्तर प्रदेश पुलिस में बहाली, इंटर पास है तो जरा और ऊपर बहाली, बीए पास बीएड है तो आप टीचर बन जाएंगे, आपके पास डॉक्टर है तो साहब कहीं डिस्पेंसरी में अस्पताल में इलाज कर सकते हैं, इंजीनियर है तो नक्शा बना सकते हैं। यानी डिग्रियों वाली तालीम जब होगी तो आप किसी सरकारी महकमे में आप कहीं भी अपने तालीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या समाज में डिग्रियों वाली तालीम सिर्फ इस समाज के लिए काफी है? आपको कहना पड़ेगा मौलाना नर्सरी से लेकर पीएचडी तक ये जितनी किताबें स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़ाई जाती है, इससे हमें डिग्रियां मिलती हैं। मगर इस बात की गारंटी नहीं है कि हर डॉक्टर इंसान हो जाए, हर इंजीनियर समाज का एक कामयाब व्यक्ति हो जाए, एक कामयाब इंसान हो जाए। यही वजह है आपने देखा होगा डॉक्टर है मगर महफिले शादी में नाच रहा है, इंजीनियर है मगर शराब पीकर के लड़खड़ा रहा है, प्रोफेसर है मगर सट्टा और जुए का बाजार गर्म किया है, बीए पास मैट्रिक पास इंटर पास है मगर जिंदगी में खास कोई परिवर्तन और बदलाव नहीं है। जहां चाहा खड़े खड़े खा पी लिया, जहां चाहा नाच गा लिया, जैसे चाहा रात गुजार ली, जैसे चाहा जिंदगी गुजार ली। यही वजह है आज बड़े बड़े अफसरान रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं, ज़ना करते हुए पकड़े जाते हैं। साहब आप ताज्जुब करेंगे, हैरत में पड़ जाएंगे। क्यों? इसलिए कि उनके पास डिग्रियां हैं, अच्छा संस्कार नहीं है, अच्छा किरदार नहीं है, अच्छा इखलाक नहीं है। यही वजह है सुल्तान रजा कहता है नर्सरी से लेकर पीएचडी तक सारी डिग्रियां एक तरफ और मुस्तफा जाने रहमत की सीरत एक तरफ, आमिना के लाल का किरदार एक तरफ। एक डॉक्टर को अपनी जिंदगी कामयाब करनी है तो नबी की सीरत को अपनाना होगा। एक प्रोफेसर इंजीनियर को अपनी जिंदगी कामयाब करनी है, आमिना के लाल की सीरत से रास्ता जोड़ना होगा। मगर आज समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो नारा लगा रहे हैं माई लाइफ माई चॉइस। मौलाना मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। सुल्तान रजा पूछना चाहता है कैसी मर्जी से जीना चाहते हैं, आपकी मर्जी क्या है? साहब इंसान जब अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारता है ना, शराबी भी बन सकता है, जुआरी भी बन सकता है, जानी भी बन सकता है, पापी भी बन सकता है, अपराधी भी बन सकता है। इंसान जब अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारता है समाज का गलत व्यक्ति और इंसान बन सकता है। क्या आपने अपनी मर्जी से जीने वालों का हश्र और अंजाम नहीं देखा? आज कॉलेज की वो लड़कियां जिन्होंने अपनी जिंदगी के फैसले अपनी मर्जी से किए, कहा मौलाना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। मेरा बाप मेरी जिंदगी का मालिक नहीं है, मेरी माँ मेरी जिंदगी की मालिकिन नहीं है। अब साहब कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की है, अपनी मर्जी से जिंदगी जीना शुरू की, नतीजा क्या निकला? आज वो लड़कियां जिन्होंने अपनी मर्जी से घर से बाहर कदम निकाल दिया, दिल्ली के गटर में टुकड़े टुकड़े करके डाल दी गई। साहब आंध्रा और मध्य प्रदेश में टुकड़े टुकड़े करके डाल दी गई। कॉलेज के पीछे टुकड़ों टुकड़ों में उनकी लाशें मिलती हुई नजर आ रही है। क्यों? उन लड़कियों ने नारा दिया था माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। माँ बाप को छोड़कर चली गई, भाई बहन को छोड़ करके चली गई, खानदान रिश्तेदार घर मोहल्ला को छोड़कर चली गई। ठीक यही हाल हमारी कौम के उन नौजवानों का भी है जो कहते हैं मौलाना हम अपनी जिंदगी को इन जिंदगी में इंजॉय करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता इंजॉय का मतलब क्या है? शराब पीकर नाचना और नाच गाने की महफिल सजाना, दोस्तों के साथ आवारगी का मुजाहरा करना। नतीजा यही निकला, एक बेटा पढ़ा लिखा है मगर बाप से उसका राबता बेहतर नहीं है, इसलिए कि वो अपनी मर्जी से जीना चाहता है और बाप चाहता है कि उसकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाए, उसकी जिंदगी में इनकलाब
اور بدلاव आ जाए। मगर मैं कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, जिन नौजवानों ने अपनी मर्जी का चुनाव किया वो कान में बाली पहनने लगे, हाथ में कड़ा पहनने लगे। मुझे तो डर लगता है कि कुछ दिन में नाक में नथिया भी नहीं पहनने लगे। जिन लड़कियों ने अपनी मर्जी का चुनाव किया, सर से दुपट्टा उतारा, जींस पहना, टी शर्ट पहना, आवारगी का मुजाहरा किया, टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली के गटर में डाल दी गई। याद रखिएगा, जिंदगी को सुकून माई लाइफ माई चॉइस में नहीं है, इसलिए कि वहां धोखा ही धोखा है, वहां खतरा ही खतरा है। कुरान कहता है, नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। जिसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक दिया, जन्नत की बहारें उसके लिए है। कुरान पता कामयाब कौन है? ये लोग समझते हैं हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं, कामयाब है। कुरान कहता है ना ना ना, कद अफलहा मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब हो गया जिसने अपने आप को साफ और सुथरा कर लिया। ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, जरा उस मालिक को मौला से पूछो जिसने तुझे पैदा किया, मुझे पैदा किया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहते हो मौलाना ये मुल्क आजाद है, हमें आप गुलाम नहीं बना सकते, जैसे आज मीडिया चिल्लाती है। आपको लिए जरूरी नहीं है कि इस्लाम के कवानीन के मुताबिक चले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस मुल्क में कौन आदमी अपनी मर्जी से जीता है? मियां, भारत 1947 में आजाद हुआ, मुल्क को चलाने के लिए संविधान का वजूद हुआ। कहा वहाँ के मुल्क के दानिश्वरों ने मीटिंग की, कहा मुल्क को चलाने के लिए संविधान चाहिए, अगर संविधान नहीं बना तो नौजवान बिगड़ जाएंगे, जमाने में आवारगी आ जाएगी, लोग एक दूसरे पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ेंगे। मुल्क में संविधान बना, हर शख्स हथियार नहीं रख सकता, हर शख्स बम बारूद नहीं रख सकता, जिसे हथियार रखना होगा उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब याद रखिएगा, इस मुल्क में कानून बना, कोई कितना ही बड़े पोस्ट पे रहेगा, अगर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाएगा जेल में डाल दिया जाएगा। इस मुल्क में कानून बना, जहेज मांगना कानूनन अपराध होगा, जो मांगेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इस मुल्क में कानून बना, जुआ खेलना, सट्टा लगाना, साहब कानूनन जुल्म होगा, अपराध होगा, जो करेगा जेल में डाल दिया जाएगा। अब याद रखिएगा, औरतों पे कोई जुल्म नहीं करेगा वरना जेल में डाल दिया जाएगा। कोई किसी की इज्जत पे डाका नहीं डाल सकता, अगर किसी औरत को अपनाना है तो उसे शादी करनी पड़ेगी, निकाह करना पड़ेगा, बगैर निकाह के जिंदगी में लाएगा जेल में डाल दिया जाएगा। अब साहब बिहार के मुख्यमंत्री को कुछ दिनों बाद समझ में आया तो माननीय श्री नीतीश कुमार ने शराब के खिलाफ कानून पास कराया और कहा बिहार में शराब को संपूर्ण बंद किया जाता है, इसलिए कि शराब से बेहयाई फैलती है, शराब से बुराई फैलती है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, है किसी की औकात जो अपनी मर्जी से जहेज मांगे जेल में डाल दिया जाएगा, है किसी की औकात जो रिश्वत ले पकड़ा जाएगा जेल में डाल दिया जाएगा, है किसी की औकात शराब पी करके सड़क पे गाड़ी चलाए पकड़ा जाएगा जेल में डाल दिया जाएगा। पूरे बिहार में अगर कोई शराब पीते पकड़ा गया जेल में डाल दिया जाएगा।